everybody. Today I am going to teach you the topic past adjustment from chapter accounting for partnership firm fundamental from your accountancy class 12th. Okay, this is the very important topic and I am Mr. Akhilesh Kumar Yadav from JPS Lucknow and I am going to start the topic now. As you are watching my screen, first question arises here: what is past adjustment? As sometime after the final account has been prepared and the partners capital account are closed, it is found that certain item has been omitted by mistake or have been wrongly treated. Okay, that means we committed mistake. Generally these mistakes are the following type: interest on capital may be omitted or allowed higher or lower. Interest on drawing may be omitted or allowed higher or lower. Similarly, salary, commission, any other expenses outstanding has been omitted. Okay, and the fourth one is what? Profit and loss has been distributed in a wrong proportion. That means what? These mistakes are committed in the account due to the following reasons, and they are said to be what? Mistakes in the final account. Now question arises here, sir, how to rectify the entries that we have committed in a mistake form? हमने पिछले साल कुछ गलतियां कर दी थी, उस गलतियों को सुधारने के लिए जो नई एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं उससे हम पास एडजस्टमेंट्स कहते हैं. इस तरह की मिस्टेक्स अक्सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन या कोई अदर एक्सपेंस या फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते समय कम और ज़्यादा देने की गलती हो सकती है. क्वेश्चन होता है कि सर हम इसे कैसे सही करें? अगर मिस्टेक्स हो गई हैं पिछले सालों में, देन हाउ कैन वी रेक्टिफाई दिस मिस्टेक्स? ओके, इट कैन बी रेक्टिफाइड इन फॉलोइंग टू वे. वी कैन प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट फॉर द पार्टनर्स अगेन. हम मिस्टेक्स कर चुके हैं तो जब हम उस मिस्टेक को सही करने का दूसरा तरीका है दोबारा फिर से अकाउंट बनाएं और सब कुछ रेक्टिफाई करें. या फिर और सेकंड, पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, दैट इज द प्रीफर्ड ऑप्शन. We generally pass an adjustment entry to rectify the previous mistakes in the next year, because generally this second method is preferred because the error do not affect the total profit of the firm. They only affect the division of profit amongst the individual partner. So there is no need to prepare final account. We just pass an adjustment entry. Now the question arises here, sir, how to pass an adjustment entry? Okay, how to pass? That means what? The journal entry can be passes in the following two way. In the next year, debit capital or current account of the partners who has been credited in excess, or in the next year, credit capital or current account of the partner who has been debited in excess. That means what? सर एडजस्टमेंट एंट्री हम जब भी करते हैं अगले साल करते हैं, यानी मिस्टेक्स पिछले साल हो चुकी होती है उसको सही करने के लिए अगले साल हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं. हम उस कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं जो पिछले साल एक्सेस क्रेडिट हो चुका था, या फिर हम नेक्स्ट ईयर उस कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं जिस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पिछले साल एक्सेस डेबिट हो चुका था. Okay, that means we do vice versa, reciprocals entry to make it rectification. रेक्टिफाई करने का यही एक तरीका है. पास एडजस्टमेंट्स एक लंबा स्टेप्स होता है बच्चों, लेकिन इसे रेक्टिफाई करने का एक बहुत आसान तरीका है अगर हम अपने स्टेप्स को ब्रेन में फिट कर लें. नाउ द स्टेप्स टू रेक्टिफाई द एडजस्टमेंट एंट्रीज आर, और पास एडजस्टमेंट एंट्रीज आर: स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द अमाउंट विच शुड बी रिकॉर्डेड बाय द वे ऑफ interest on capital, interest on drawing or salary or share of profit. First of all, which should be recorded, जो हमें देना चाहिए था. मतलब सबसे पहले स्टेप में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि पार्टनर को कौन सा अमाउंट देना चाहिए था जो सही है उसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी या शेयर ऑफ प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्म में. पहले स्टेप में सिर्फ हम ये कैलकुलेट करते हैं कि क्या सही होना चाहिए था, which should be recorded. Then in the second step, we just calculate the amount already recorded by the way of interest on capital, interest on drawing,
सैलरी और शेयर ऑफ प्रॉफिट। दैट मीन्स इस सेकेंड स्टेप में जो हमने मिस्टेक कर दी है, जो गलत प्रोपोर्शन में बांट दिया है, उसे हम कैलकुलेट करते हैं, विच वी हैव डन ऑलरेडी। जो हमने पिछले साल मिस्टेक्स कर दी थी वो कैलकुलेट करते हैं। थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन द फर्स्ट स्टेप एंड स्टेप नंबर 2। जो हमें करना चाहिए था और जो हमने कर दिया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और जिससे हमें पता लग सके कि एक्चुअल में अमाउंट मिस्टेक हुआ कितना है। एंड द फोर्थ वन इज व्हाट डिटरमाइन द पार्टनर्स हुज रिसीव्स एक्सेस एंड पार्टनर हु रिसीव शॉर्ट। तब हमें पता चलता है किस पार्टनर को हमने ज़्यादा दे दिया और किस पार्टनर को हमने कम दे दिया। इसके हिसाब से एक जर्नल एंट्री पास आउट करते हैं ताकि अपनी रेक्टिफिकेशन को सुधार सकें। देन वी जस्ट डेबिट द कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर हु रिसीव्स एक्सेस ऑफ कैपिटल, ओके, एंड वी क्रेडिट द कैपिटल और करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर हु रिसीव इन शॉर्ट। दैट मीन्स हम उस पार्टनर कैपिटल को डेबिट करते हैं जिसे एक्सेस रिसीव हो गया था, और उस पार्टनर को जिसे कम रिसीव हुआ था उसे दोबारा क्रेडिट करते हैं। कहने का मतलब इन जनरल टर्म में बच्चों वही है कि अगर किसी पार्टनर को ज़्यादा मिल गया है तो फर्म उसे वापस ले लेती है, और जिसे कम मिला है उसे वापस दे देती है। इस तरीके से हम एडजस्टमेंट कर देते हैं और पिछले सालों की हुई मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर लेते हैं। ओवर एंड ऑल आई कैन से दैट व्हाट in short I can derive a conclusion to correct the past adjustments mistakes. We can just do one thing: excess of every debit account should be credited and excess of every credit entry or account will be debited. And in case of short, whenever there is debit, it should be again debited. Whenever there is any credit, it should be credited. That means this is the way of rectifying the journal entry. मिस्टेक्स हमने पिछले साल की थी, अगर किसी से ज़्यादा हो चुका है तो हमने दिया था हम वापस ले लेंगे, किसी को देना चाहिए था नहीं दिया तो इस साल देंगे। पास एडजस्टमेंट्स करने का यही तरीका है, ठीक है। इसको बेहतर समझाने के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ, है ना। क्वेश्चन वैसे तो मैंने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन चूज़ किया है जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। वो क्वेश्चन नंबर 43 है DK गोयल बुक का, ओके। शायद ये क्वेश्चन थोड़ा आपको हेल्प कर दे जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना। मैंने ये 43 क्वेश्चंस लिया था एंड यू कैन सी द क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट ऑन 1 अप्रैल 2015 द कैपिटल ऑफ A एंड B, है ना। A और B की कैपिटल बच्चों कितनी है? 4 लाख है, और B की जो कैपिटल है वो 2 लाख है ना। यहाँ पे दोनों की कैपिटल क्वेश्चन में मेंशन है, कोई दिक्कत नहीं, मेंशन है, होने दीजिए, ओके। दे डिवाइडेड प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, दैट्स द मिस्टेक। ये गलती है बेटा, उन लोगों ने अपना प्रॉफिट जो है कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कैपिटल रेशियो अगर आप निकालोगे तो क्या निकलेगा? 2 लाख है, ये 4 लाख है, तो 2 के टेबल से वो डिडक्ट करके देखो तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 1, यानी इन्होंने प्रॉफिट 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गलती से। दिस इज द मिस्टेक, ये गलती कर दी उन्होंने, ओके। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर 3 lakhs, ओके। प्रॉफिट इस साल का, प्रॉफिट फॉर द ईयर इस साल का प्रॉफिट 3 lakhs था, विच हैज बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, बट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर नॉट पास थ्रू द बुक, ओके। दैट मीन्स व्हाट, दे जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड 3 lakhs, ओके, विदाउट डूइंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। इनमें से कोई भी एडजस्टमेंट की ही नहीं, वो बेचारे भूल गए, उन्होंने सिंपल 3 lakhs को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, ये गलती हो गई। क्या क्या करना चाहिए था, मतलब क्वेश्चन में क्या सही पोर्शन था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना था, चलो हम भूल गए, दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बच्चों देना था 10,000, A को 12,000 एंड B विल बी गिवन 10,000। कमीशन ड्यू टू बी को एक स्पेशल ट्रांजेक्शन के लिए कमीशन 20,000 का देना था, और A को सैलरी पे करना था कितना? 50,000। अरे भाई, इतनी सारी मिस्टेक्स करके हमने सिंपल क्या किया, 3 lakhs को 2:1 में बांट दिया। मिस्टेक तो हो गई ना। तो चलिए हम 10 अप्रैल को एक जर्नल एंट्री पास करते हैं अपने बुक्स के अंदर, विच विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म, okay. That means you have to rectify the error here, you have to pass journal entry.
ठीक है, मिस्टेक्स हो गई बच्चों, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गई। अब हम इसको सही करते हैं। एडजस्टमेंट का तरीका ही है कि हम सही कर लें, हम नया प्रिपरेशन नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने आपके लिए इसके लिए मैंने आपके लिए सबसे पहले एक परफॉर्मा बना रखा है। अगर आप इस पे देखोगे बच्चों तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन में क्या कहा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले मैंने कहा था स्टेप नंबर 1, व्हाट शुड बी गिवन। ओके, व्हाट शुड बी गिवन और व्हाट शुड बी रिकॉर्डेड बाय द वे ऑफ आईओसी और आईडी, इट शुड बी कैलकुलेटेड। क्या देना चाहिए था भाई क्वेश्चन के हिसाब से? अगर आप देखोगे बच्चों तो आईओसी देना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। चलो पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये मैंने लिखा हुआ है। और मैंने कहा था जब भी हम पार्टनर्स को कोई चीज़ देते हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। ओके, तो मैंने क्रेडिट कर दिया। ओके, 12% कैलकुलेट करना चिल्ड्रन, तो व्हेन यू कैलकुलेट 12% ऑफ 4 लाख, ओके, 4 लाख इंटू 12 अपॉन 100, 4 lakhs into 12 upon 100, it's become your 48,000 as a interest on capital for A. No problem at all. This is 48,000. Okay. Now I am calculating the next interest on capital. When 2 लाख का हम 12% निकालेंगे, 12% into 12 upon 100, it's become 24,000। ये उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में बच्चों देना चाहिए था, हमने दे दिया। हमने कहा चलो भाई गलती हो गई थी, मिस्टेक को हमने सही कर लिया, वी हैव गिवन। अब ज़रा ऐड कर लें, कितना हो गया? 48,000 प्लस 24,000 चिल्ड्रन, इट्स बिकम 72,000। हमें 72,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना चाहिए था, दे दिया। चलो अब और क्या गलती हो गई थी? अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं देखता मैं अगले वाले पोर्शन को देखता हूँ बच्चों। कमीशन ड्यू टू बी का कमीशन कितना था? एक स्पेशल ट्रांजेक्शन के लिए कमीशन देना था 20,000, तो मैंने लिखा कमीशन ड्यू टू बी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने 2 तरीका बताया था कि क्या देना है पार्टनर को, वो हमेशा क्रेडिट होना चाहिए। और अगर तुमको ना समझ में आए कि सर कब क्रेडिट होना चाहिए और कब डेबिट होना चाहिए, तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे जो एंट्री जैसे आती थी, मतलब जिसे क्रेडिट करते थे उसे क्रेडिट कर दो और जिसे डेबिट करते थे उसे डेबिट ही करना होगा यहाँ पे। तो मैंने इसे भी क्रेडिट कर दिया। ओके, आई हैव गिवन 20,000 टू बी। मैंने ए को नहीं देंगे, मैंने बी को 20,000 दे दिया। मैंने कहा आप ले लीजिए कमीशन, इसने ले लिया। ठीक है, यानी फर्म का और कितना पैसा गया? फर्म का बच्चों 20,000 और चला गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, चला गया। ओके, ए इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 50,000। ओके, ए को सैलरी पे करना था। अरे भाई भूल गए थे, ये भी मिस्टेक हो गई। हमें देना है या लेना है? हमें देना है, यानी पार्टनर को मिलेगा। तो जब कभी हम पार्टनर को देते हैं बच्चों तो वो एंट्री भी क्रेडिट ही होती है। ठीक है ना? तो हमने क्या किया, ए को वी हैव गिवन सैलरी टू ए, ओके, एंड वी आर अगेन क्रेडिटिंग, दैट इज हाउ मच इट इज 50,000। तो मैंने ए को 50,000 की सैलरी दे दी ताकि ए का पूरा हो जाए। ठीक है, चलो बी को कोई सैलरी दे दी थी। ओके, अब थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक कितना अमाउंट ये है जो पार्टनर्स को देना चाहिए। ठीक है ना? तो ये 50,000 प्लस 48, इट्स बिकम 98,000। ओके, नेक्स्ट 24 प्लस 20, इट्स बिकम 44,000 बच्चों। ओके, और उसके बाद बेटा इसे कैलकुलेट करोगे तो 98 प्लस 44, इट्स बिकम 1,42,000 विल बी योर टोटल क्रेडिट। ये इतना था जो हमें पार्टनर्स को देना चाहिए था। अभी रुको, तो क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो कहता है कितना था, 12,000 और 10,000। अब खुद ही बताओ, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों हम देते हैं पार्टनर्स को या लेते हैं? अरे आप खुद ही कहोगे सर लेते हैं, क्योंकि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट डेबिट करते थे, है ना? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखो, डाउट नहीं रखना है। जो कुछ हमें पार्टनर्स को देना हो बच्चों उसे हम क्रेडिट करेंगे।
ठीक है, और जो पार्टनर से लेना हो उसे हम डेबिट करेंगे, तो मैंने डेबिट कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बच्चों मैं लेस करूंगा, क्योंकि ये उनको देना था और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना है। तो मैंने क्या किया, 12,000 और यहाँ पर 10,000 एज पर द क्वेश्चन आई हैव जस्ट डिडक्टेड। अब आप कहोगे सर क्यों, मैं एक एग्जाम्पल कैपिटल अकाउंट ही बना रहा हूँ बच्चों। अब ध्यान से देखोगे ना, तो ये 3 एंट्री कैपिटल अकाउंट की एक साइड जाती है, और जबकि ये जो एंट्री है डेबिट वाली, ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाती है। तो मुझे पता चला कि अभी मुझे 22,000 पार्टनर्स से लेना है। देखो 98 देना है, 44,000 बी को देना है, जबकि उनसे इतना इतना 12,000 और 10,000 लेना है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, मैं टोटल करता हूँ बच्चों, ठीक है ना, ये मैंने कर दिया टोटल। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि कितना क्रेडिट हुआ टोटल। ये 98,000 माइनस 12 इट्स बिकम 86,000, and here 44,000 minus 10 it's become 34,000, and 34,000, and when you add both of it it's become 1,20,000, no problem at all। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गया। जो देना था हमने दे दिया, जो लेना था वो पार्टनर से ले लिया। क्वेश्चन ये कहता है बच्चों कि सर इस क्वेश्चन में एक और चीज़ थी कि प्रॉफिट कितना था, 3 लाख। तो जो प्रॉफिट अगर बचता वो किसको देते, वो पार्टनर्स को ही तो देते हम। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे सर बैलेंस प्रॉफिट। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे कि बैलेंस प्रॉफिट बचता कितना है। तो बैलेंस प्रॉफिट हम देखते हैं बच्चों, पूरा फर्म का प्रॉफिट था कितना, 3 लाख, उसमें से मैंने कितना दे दिया अभी, 1,20,000, उसमें से 1,20,000 मैंने पार्टनर्स को दे चुका हूँ। तो अब बचा कितना, अब मेरे पास 1,80,000 बचा है बच्चों। ये प्रॉफिट 1,80,000 बचा है, और जो बचा होता है प्रॉफिट वो किस रेशियो में हम बांटते थे सर, 2:1 में बांटते थे, जैसा क्वेश्चन कह रहा हो। तो हम ज़्यादा सेंस नहीं लगाएंगे, इसे 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा। तो वैन यू डिवाइड 1,80,000 इन 2:1 इट्स बिकम 1,20,000 एंड इट्स बिकम 60,000 फॉर बी। मैंने कुछ नहीं किया, बचे हुए प्रॉफिट को ए और बी में उनके रेशियो, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो होना चाहिए था। ठीक है, और इस तरीके से 1,80,000 चला गया इनके पास। ओके, नाउ आई एम डूइंग द फाइनल इक्वेशन। ओके, एंड इट इज ऑल्सो क्रेडिटिंग, हम दे रहे हैं ना पार्टनर को ये लोग। ठीक है, अब मैं नेट टोटल करता हूँ तो बच्चों, है ना, हम अगर ग्रैंड टोटल करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे लिखता हूँ टोटल क्रेडिट, है ना, 1,20,000 और प्लस 86, 1,20,000 प्लस 86 इट्स बिकम 2,06,000। ओके, देन यू ऐड 60,000 प्लस 34, 60 प्लस 34 इट्स बिकम 94,000, और ये टोटल हो जाएगा बेटा 1,80,000 और ये 3 लाख बच्चों। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये था कि सर कुछ नहीं, अभी तक जो आप कर रहे थे वो ये पोर्शन है दैट शुड बी डन। मैंने कहा था ना बेटा कि सबसे पहले कैलकुलेशन की जाती है जो करना चाहिए था, यही करना चाहिए था बेटा, ये राइट प्रोपोर्शन है। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, कमीशन देना चाहिए था, सैलरी देनी चाहिए थी, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना चाहिए था, और बचे हुए प्रॉफिट को उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था। तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद पता चला कि ए को 2,06,000 मिलना था और मिलना चाहिए था बेटा, एंड 94,000 बी को मिलना चाहिए था बच्चों। यानी इस तरीके से 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना था। बट हुआ क्या कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन गलत कर दिया। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आपने देखा होगा द प्रॉफिट इज जस्ट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है ना, ओके, तो अब यहाँ पे लिखेंगे लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके,
ठीक है, ओके। अब हमने, सिंपल सी बात है सर, हमने क्या किया था, क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट ना करके प्रॉफिट को 2:1 में डिवाइड कर दिया था। प्रॉफिट था कितना अपना टोटल, 3 लाख था बच्चों। तो अगर आप 3 लाख को अगर 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सिंपल सी बात है कि ये जाएगा 2:1 का मतलब है यहाँ पे चला जाएगा 2 लाख, ठीक है, और यहाँ पे चला जाएगा बेटा 1 लाख, ठीक है, और यहाँ पे टोटल हो जाएगी 3 लाख। अब मैं ये अमाउंट को डेबिट लिख सकता हूँ, जानते हो क्यों? ये वो अमाउंट है जिससे हमने गलती से डेबिट कर दिया था, गलती से डेबिट कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। और ये वो अमाउंट है जो होना चाहिए था। मैंने कहा था ना बेटा, जस्ट डू द कैलकुलेशन व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट हैड बी डन, क्या सही है और क्या गलत है, उन दोनों का हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं, थर्ड स्टेप। ओके, तो ज़रा देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 6000 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ये भी 6000 ही आएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन किसका साइड, इन दोनों कॉलम में कौन सी साइड बड़ी है सर, इसमें क्रेडिट साइड बड़ी है, अगर ध्यान से देखिए तो ये अमाउंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट का होगा, और इसमें कौन सा बड़ा है, डेबिट, यानी ये डेबिट अमाउंट होगा। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये आपके सामने है। ये तो वो टेबल है जो एडजस्टमेंट शो कर रहा है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें तो जनरल एंट्री पास करनी थी, एडजस्टमेंट एंट्री, तो अब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं बेटा। यहाँ पे डेबिट कौन दिख रहा है, बी। नाउ आई एम मेकिंग द जनरल एंट्री बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, okay, to A's capital, no problem at all, as per the question, to capital account. Okay, this is the journal entry that you should made. Okay, that is what, how much it is, 6000 and it is 6000. I think it is clear. क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा कि सर आपके हिसाब से आपने सही कहा था कि हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे बच्चों कि क्या करना चाहिए था। ये वो सारा कैलकुलेशन है जो करना चाहिए था, और हमने क्या कर दिया वो मिस्टेक है। मतलब मैं कहूँ ये राइट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, ये रॉन्ग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था। दोनों के बीच में हमने क्या किया, डिफरेंस गेट कर लिया, डिफरेंस। और जब डिफरेंस गेट किया तो पता चला कि बी को ज़्यादा अमाउंट चली गई थी, तो बी किसको दे देगा, ए को दे देगा। डेबिट बी's कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट ए's कैपिटल अकाउंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Okay, I am taking the second question for more explanation. That is 43B of DK Goel. Kumar and Raja were the partner in the firm, sharing profit and losses in the ratio of 7:3. No problem at all. Their fixed capital account, उनका fluctuating नहीं है बच्चों, fixed है, 9 lakhs, and Raja have 4 lakhs. The deed provided that provided for the following, but the profit for the year was distributed without providing for. मतलब पार्टनर्स ने ये सारा कुछ नहीं दिया और सीधा प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। प्रॉफिट था कितना, 2,78,000। क्या देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कुमार की सैलरी और राजा की सैलरी 3,000 पर मंथ के हिसाब से देना भूल गए। प्लीज़ सी केयरफुली बेटा, ट्राई टू रिकॉल द वैल्यू। कैपिटल इनकी थी 9 lakhs और 4 lakhs। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% देना भूल गए। कुमार की सैलरी 550,000 और राजा की सैलरी 3,000 पर मंथ, ये देना भूल गए। और प्रॉफिट इस साल का 2,78,000 था। मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। देखो बच्चों, ये ना देना ही तो मिस्टेक हो गया, तो हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। चलते हैं अब हम कैलकुलेशंस करते हैं इनके हिसाब से, ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे फिर भी। ओके, तो मैं चलता हूँ बच्चों, फर्दर कैलकुलेशन पे चलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा ना कि क्या करना चाहिए था, है ना, व्हाट शुड बी डन, वो सबसे पहले करते हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल सर। तो क्या करना चाहिए था, चलते हैं। सबसे पहले कुमार और राजा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, तो मैंने नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। तो ये हो गया बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
ओके, पार्टनर्स को देना है, सिंपल सी बात है। तो जब भी हम देते हैं बच्चों तो क्रेडिट ही करते हैं। और जब भी हम देते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो आप कैलकुलेट कर लें, मेरे सामने बुक है, आप कैलकुलेशंस तो नहीं देख पाओगे शायद, लेकिन मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लेता हूँ। कुमार की कैपिटल बेटा 9 लैक्स थी। तो 9 लैक्स की 9 लैक्स इंटू 9%, 9% becomes 81,000 as a interest on capital. Similarly, Raja have capital of 4 lakhs, तो 4 lakhs का 9% कितना हो जाएगा? It's become 36,000. Okay, 81,000 and 36,000, it's become 1 lakhs 17,000. No problem at all. Okay. Okay, now I am proceeding. कुमार हैज़ टू बी गिवन सैलरी। ओके, पार्टनर्स को सैलरी भी देना भूल गए, ये बड़ी बड़ी मिस्टेक हो गई। कोई दिक्कत नहीं, अभी हम सैलरी दे देते हैं। और सैलरी भी तो क्रेडिट ही करोगे ना बच्चों, मैंने कहा ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो चीज़ जहाँ की जाती है बस वैसा कर देना। देना है तो क्रेडिट, ठीक है। 50,000 को देना था कुमार को, चलो भैया गलती हो गई, हमने इनको सैलरी दे दी। और दूसरे वाला जो बंदा था राजा, उसको सैलरी देनी थी 3,000 पर मंथ। तो हाउ मेनी मंथ वी हैव? 12। तो 12 इंटू 3, इट्स बिकम अगेन 36। यानी दोनों को मिलाकर बच्चों 86,000 हमें कुल मिलाकर सैलरी देनी चाहिए थी। चलो दे दिया, अब तो खुश हो ना, अब तो नाराज मत हो, ठीक है। अच्छा, एक और काम करते हैं बच्चों, बाकी जो प्रॉफिट बच जाता वो क्या करते? वो पार्टनर्स को ही तो देते। प्रॉफिट कितना था? 2,78,000। तो अब कैलकुलेट करते हैं बच्चों कि प्रॉफिट बचा कितना है ना। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग प्रॉफिट रिमेनिंग। ओके, कितना बच गया? प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। देखते कितना बचता है सर। प्रॉफिट मेरी थी बच्चों 2,78,000। नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, और उसके बाद से अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखोगे बच्चों तो कितना दिया हमने कुल मिलाकर, देखो ना 1,17,000 और प्लस 86,000। 1,17,000 प्लस 86,000, इट्स बिकम 2,03,000। हमने 2,03,000 रुपये अपने पार्टनर्स को दे दिया। तो बचा कितना? 75,000, है ना। तो 75,000 था क्या बच्चों? अरे सर वही अमाउंट तो है जो बचना चाहिए था, लेकिन किस रेशियो में बच्चों? तो क्वेश्चन में हमारा रेशियो दे रखा था 7:3। ओके, तो ये रहा सर प्रपोर्शन 7:3। नो प्रॉब्लम। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। ओके, तो अब 7:3 को यानी 10 हो गया 7,500। तो आई एम जस्ट डिवाइडिंग द अमाउंट 52,500 and it's become 22,500। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड ओवर एंड ऑल, है ना। यहाँ पर सर टोटल क्रेडिट कितना होता है क्वेश्चन के हिसाब से? टोटल क्रेडिट का मतलब बच्चों कितना हमें पार्टनर्स को ओरिजिनली देना चाहिए था, कैलकुलेट कर लीजिए, आपके सामने है। 52,000, 50,000, it's become 1,02,000, 1,83,000, it's become 1,83,500। और राजा को कितना मिलना चाहिए था? 72,000 प्लस 22,500, इट्स बिकम 94,500। कोई दिक्कत नहीं। यानी सिंपल सी बात है बच्चों कि अब टोटल कैलकुलेशन हमारी शो करेगी 2,78,000। याद रखिएगा, जब क्वेश्चन पूरा सही कैलकुलेशन कर लोगे तो ये प्रॉफिट आपकी बुक की प्रॉफिट से मैच करना चाहिए, ठीक है ना। ओके बेटा, ये वो पोर्शन मैंने अभी तक कैलकुलेट किया जो करना चाहिए था, लेकिन गलती क्या हो गई थी? वी हैव जस्ट डिवाइडेड द प्रॉफिट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने कुछ दिमाग नहीं लगाया था, हमने सिंपल एक काम किया, गलती हो गई, अकाउंटेंट जो था वो सो गया था। हमने क्या किया? प्रॉफिट दैट ऑलरेडी distributed in the ratio of 7:3,
अकाउंटेंट इतना समझदार था नहीं, उसने सॉरी 2,78,000 बेटा, 2,78,000 को उसने सिंपल 3:1 में 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये उसकी ब्लंडर मिस्टेक थी, यानी वो दे चुका है बच्चों, और जो दे चुका है वो अमाउंट डेबिट होती है। When you divide 2,78,000 into 7:3, it's become 1,94,600 and it's become 83,400। तो ये कितना बना? ये बना 2,78,000 ही होगा मेरे बच्चों। ठीक है, सिंपल है सर। अब हम थर्ड स्टेप पे आ चुके हैं क्वेश्चन के। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए था और क्या हो गया? दोनों के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस इसके बीच में होगा बच्चों, इट्स बिकम 11,000 एंड हेयर और ऑल्सो बिकम 11,000। देखिए इसमें बड़ा कौन सा है? यहाँ बड़ा है अपने डेबिट, और यहाँ देखो कंपेयर कर लो, इसमें बड़ा है अपना क्रेडिट। ठीक है, अब चलो जर्नल एंट्री की बारी आ गई, कोई दिक्कत नहीं। नाउ आई एम जस्ट डूइंग द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री यहाँ पे डेबिट कौन है? कुमार। तो सिंपल सी जर्नल एंट्री होगी बच्चों, सर कुमार्स करंट अकाउंट डेबिट, ओके, एंड टू राजा करंट अकाउंट। वाई इट इज सो? करंट अकाउंट क्यों? क्योंकि शुरुआत में ही बच्चों अगर ध्यान दोगे तो उन्होंने कहा था दे हैव फिक्स कैपिटल अकाउंट सी, और जिसकी फिक्स कैपिटल अकाउंट होती है वो करंट अकाउंट ही मेंटेन करता है। तो अब कितना? ये सर 11,000, और ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? ये भी 11,000। सिंपल सी बात समझ में आ गई कि कुमार विल कंपनसेट टू राजा। कुमार के पास ज़्यादा पैसे चले गए थे, वो राजा को कॉम्पनसेट कर देंगे न्यू ईयर में, और हम इस तरीके से रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर लेंगे। मैं फिर आपको कंक्लूड करता हूँ बच्चों, जो मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन आपको पढ़ाया था। मैंने कहा था क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, ये होना चाहिए बच्चों, और क्या गलती से हो गया, व्हाट हैड डन, ये हो गया। दोनों के बीच का क्या करते हैं? डिफरेंस गेट करते हैं, गेट कर लिया, और लास्ट स्टेप मैंने कहा था रेक्टिफाइड एंट्री पास कर दी जाती है। ठीक है, सिंपल हम देखते हैं बच्चों कि सही तरीके से कुमार को 1,83,500 मिलना चाहिए था, लेकिन गलत तरीके से उनको 1,94,600 चला गया। तो इसका मतलब कुमार विल रिटर्न 11,000 एंड ही विल कंपनसेट टू राजा। दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री for the question. Is it okay? Thank you.